اچھا شکر گزاری ہے. باقی جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے میرے خیال میں وہ پوشیدگی میں روزہ رکھنے والے ہیں. اور اچھی بات ہے. آج میرا مقصد آپ کا امتحان لینا نہیں ہے بلکہ آج میرا مقصد تعلیم دینا ہے, روزے کی تعلیم. کیونکہ آج کے دن ان دنوں میں ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ یا خاندان کے افراد روزہ رکھتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے کہ روزے کا آغاز کہاں سے ہوا, روزے کا مطلب کیا ہے, اور روزہ سب سے پہلے اس سرزمین پر کس نے رکھا تھا. ٹھیک ہے, آج ہم سیکھیں گے. باقی آپ روزے کے بارے میں آپ پیدائشی مسیح ہیں, آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک رکھنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے روزے کی پاسداری کرنی ہے. لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس روح زمین پر کس قوم نے روزہ رکھا تھا. اور بائبل مقدس میں لفظ روزہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ کس کتاب میں خدا نے بائی نیم ہمیں دیا تھا کہ یہ روزہ ہے. روزے کا جو مطلب ہے وہ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ اونچی ذرا بولیں. عبرانی زبان کا. غور سے سنیں, میں تھوڑے سوال بھی کروں گا. ٹھیک ہے, عبرانی زبان کا لفظ ہے روزہ اور یہ سوم سے نکلا ہے, سین واو اور میم. عبرانی میں اس کو سوم کہتے ہیں جس کا مطلب اردو میں روزہ ہے اور جس کے معنی ہے فاقہ کرنا یا ترک کرنا یا اپنی جان کو دکھ دینا. یہ ہے روزے کا مقصد. اور سب سے پہلے بائبل مقدس میں قضات کی کتاب اور اس کے 20 باب میں روزے کا ذکر آیا. قضات کی کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی 26 آیت آپ گھر جا کے تلاوت کر سکتے ہیں. پہلی بار اس ماتم کرنے کو, اس فاقہ کرنے کو ایک مخصوص لفظ دیا گیا اور وہ لفظ روزہ تھا. سو یہ قضات کی کتاب میں, کون سی کتاب میں؟ قضات کی کتاب میں خدا نے یہ خاص ورڈ دیا جس کو آج بہت سی قومیں جو ہیں وہ ادا کرتی ہیں اور اس کے وسیلہ سے روزہ رکھتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ سے پہلے جو ایماندار لوگ تھے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے, یا اس روزے کو وہ کیا کہتے تھے؟ سو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے جب روزے کا ورڈ نہیں آیا تھا لوگ روزہ تو رکھتے تھے لیکن یہ عبادت کا حصہ نہیں تھا. یہ عبادت کا حصہ باقاعدہ طور پر نہیں تھا بلکہ روزے کا جو معنی تھا وہ بالکل الگ تھا. اور لوگ ماتم کرنے کے لیے یا نوحہ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو غم دینے کے لیے روزہ رکھتے تھے. آپ ابراہیم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں, مقدس ابراہیم کی زندگی میں کہ جب اس کی بیوی سارہ فوت ہو گئی تو لکھا ہے کہ اس نے ماتم کیا اور نوحہ کیا اور فاقہ کیا اور نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. پھر یوسف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, یعقوب کے بارے میں کہ جب اس کے بیٹے کو, جو اس کا پیارا بیٹا تھا, جب اس کے بارے میں خبر دی گئی کہ درندوں نے اس کو چیر پھاڑا ہے, مار کھایا ہے, اور وہ پراہن, وہ پوشاک اس کے پاس لے کر آئے تو وہ بھی رویا. اور لکھا ہے اس نے اپنا پراہن چاک کیا اور خاک پر بیٹھ گیا اور نہ کھایا اور نہ پیا اور روتا رہا اور نوحہ کرتا رہا اور ماتم کرتا رہا. سو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے پہلے موجود نہیں تھا. پہلے روزے کے معنی جو تھے وہ الگ تھے, ماتم کی صورت میں تھے, نوحہ کی صورت میں تھے. اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری بھوک مر جاتی ہے. ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور میں بہت چھوٹا تھا اور ہمارے گھر میں بھی کھانا بنا تھا, دیگا بڑھیا سا, لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ مجھے بھوک نہیں تھی. میں غم میں تھا, میں ماتم میں تھا, میں نوحے میں تھا اور میرے سامنے بھی خوراک آئی لیکن میں نے اس کو نہ چکھا. سو یہ پہلے مفہوم تھا. لیکن جب موسیٰ کو خدا نے احکامات دیے تو اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ تو خدا کی عبادت کرنا, اور یہ ایک بدنی عبادت تھی جو بعد میں خداوند نے اس کو بتائی کہ تو اپنی بدنی عبادت بھی کرنا.
समझ आ गई आपको कुछ? रोजा जो है इसका आगाज बनी इसराइल से हुआ था। कहां से हुआ था? इसका मौजद जो है, इसका जो फाउंडर है वो बनी इसराइल है। और फिर बाद में दूसरी लोगों ने बनी इसराइल को देखकर इसमें से रोजे को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने देखा, उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद मसीही जब अलग हुए तो उन्होंने भी रोजा रखना शुरू कर दिया। और फिर आजकल हम देखते हैं जिस मुल्क में हम रहते हैं, मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर हमारे मुसलमान लोग भी यही वर्ड अदा करते हैं कि हम रोजा रख रहे हैं। आगाज कहाँ से हुआ? तज़ात की किताब से हुआ, तौरात की किताब से हुआ, और बनी इसराइल ने इस रोजे का आगाज किया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये थोड़ा सा तारुफ मैं बयान कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मसीही रोजे रखते हैं, जो आजकल हम रोजे रख रहे हैं, ये किसने मुकर्रर किए हैं? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि ये तो यहूदियों के रोजे थे। जो पहले एक रोजा था जो कफारे का रोजा था, और बाद में 4 और रोजे बनी इसराइल को दे दिए गए। ये टोटल 5 हो गए। जो इज्तिमाई रोजे थे, जो पूरी जमात ने रखने होते थे, इनफरादी रोजा वो कभी भी रख सकते थे। जैसे आज भी हम रोजे रखते हैं जब कोई बीमारी होती है, जब कुछ मांगना होता है, या जब हम चाहते हैं कि खुदा के नजदीक हम आ जाएं, फिर हम रोजे में इनफरादी तौर पर ठहरते हैं। लेकिन इज्तिमाई तौर पर ये 5 रोजे बनी इसराइल को दिए गए। आपसे मेरा ये सवाल है, कोई मुझे बताए कि मसीहों ने रोजों का आगाज कब से किया? हम ऐश वेडनेसडे मनाते चले आ रहे हैं, रात का बुध मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि ऐश वेडनेसडे क्या है, या ये जो रोजे हम रखते हैं ये क्या है, या हम क्यों इन रोजों को रखते हैं, और किस शख्स ने ये रोजे मुकर्रर किए थे। हमने सीखना है जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वाली साहब ने अमाल की किताब सीखा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया ने रोजों का आगाज किया और रोजा शुरू से चला आ रहा है। लेकिन ये जो 40 रोजे हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि ये 40 रोजे भी किसी ने रखे होंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। नाम क्या था जिसने ये मुकर्रर किए थे? देखें, हमने सीखना है, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं। भाई ने हौसला अफजाई की, इनके लिए तालियां बजाएं। और ये भी जवाब है, बहुत अच्छे। मुझे खुशी होती है जब आप जवाब देते हैं। ये रोम का एक एल्डर था, रोम की कलीसिया का, जो मौजूदा इटली है अभी। अब आप कह सकते हैं कि ये रोमन कैथोलिक थी। और उसमें ये 222 ईस्वी में 222 ईस्वी में ये एक बुजुर्ग एल्डर था जिसने ये रोजे मुकर्रर किए, और जिसने ये तजवीज पेश की कि मसीहों के भी बाकायदा रोजे होने चाहिए। बाकी कौमों के हैं तो मसीहों के भी होने चाहिए, और हमारे रोजे यहूदियों से अलग होने चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके रोजों की नफी की थी कि उन जैसा रोजा तुम ना रखना। मत्ती की अंजील में 23 बाब में 15 दफा मसीह खुदावंद ने उनको मुलामत उनकी की है और कहा है, आए रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम दिखावे के लिए रोजे रखते हो, खैरात देते हो, दुआएं करते हो, ताकि लोग तुम्हें रोजादार जानकर तुम्हारी इज्जत करें। खुदा ऐसे रोजों को पसंद नहीं करता। सो वो एल्डर जो था वो बाइबल की तालीम से वाकिफ था, वो इन सारी चीजों को जानता था। इसलिए उसने ये सोचा कि हम अलग से, हम मसीह जो हैं, हम रोजे में ठहरेंगे। और उसने ही ये ऐश वेडनेसडे जो है, जिसको राख का बुध कहते हैं, ये मुकर्रर किया था। और इस शख्स का नाम, ये यूनान का रहने वाला था, हिप्पोलिटस था। क्या नाम था? हिप्पोलिटस था, जो रोम का एक एल्डर था। और 222 ईस्वी में इसने ये रोजे जो हम रखते हैं, ये उसने मुकर्रर किए। देखो, कोई सानू पूछ लवे तो सानू पता तो होना चाहिए कि रोजे सी के आगाज कितों है। लकीर दे फकीर नहीं बनना कि बस अग बंद करके बस जी है सन
भाई साहब ऐसा तरह करने हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। बाइबल मुकद्दस जो है इल्हामी किताब है, ये किसी इंसान की किताब नहीं है, और ये हो नहीं सकता कि खुदा की बातें हो और उनका सबूत ना हो। हम कहते हैं ना खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, तो उसका सबूत भी है, कब्र उसकी, कफन उसका मौजूद है। और मैं पिछले दिनों में देख रहा था वो पत्थर जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की जो है यीशु मसीह को रखा गया, वो पत्थर भी मौजूद। वो दरख्त गethsemane बाग में जो 12 दरख्त थे वो भी मौजूद। हम मौजूद नहीं, हम गायब हैं। हम खुदा के पास आना नहीं चाहते, हम उसको कबूल करना नहीं चाहते। मसीह है लेकिन हमारी जिंदगियों से गायब। क्यों है? क्योंकि हम उसको वेलकम नहीं करते, हम सीखते नहीं है, हम जानते नहीं है। मैं एक जगह मैसेज दे रहा था और मैं बता रहा था कि इंसानी जिंदगी के 3 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज पैदाइश से मौत है, दूसरा स्टेज मौत से क़यामत है, तीसरा स्टेज क़यामत से अदालत और हमेशा की जिंदगी है। ये पहला स्टेज है जो हम गुजार रहे हैं। बड़ा जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर हम इस स्टेज को अच्छे तरीके से अदा करेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, तो बाकी स्टेजेस भी हमारे ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि बचपन में हम स्कूल में जाते हैं, 3 स्टेज है ना इंसानी जिंदगी के। पहला स्टेज कौन सा है? बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। तो बचपन च अगर स्कूल असी ना जाइए, तालीम हासिल ना करिए, तो की सानू डिग्री मिल जाती है? नहीं मिलती। या क्या हमें अच्छी नौकरी मिलती है? शादी होती है, होती है, लेकिन फिर होती भी 3rd क्लास, वैसे म्यार की नहीं होती। एक पढ़े लिखे आदमी की जिंदगी अलग से होती है। शादी तो हो ही जानी है, जिंदगी तो गुजार ही देनी है, जज भी गुजारो। लेकिन पहला स्टेज बहुत जरूरी है। अगर पहले स्टेज में आप मेहनत करेंगे, पहले स्टेज में कुछ करेंगे, तो आगे आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। सो ये जिंदगी भी पहला स्टेज है जो हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। हमें मौका दिया है कि हम रोजा रखें, हमें मौका दिया है कि हम तौबा करें, हमें मौका दिया है कि हम खुदा के पास आएं, हमें मौका दिया है कि हम अच्छे काम करें, हमें मौका मिला है कि हम चर्चिज में जाएं, हमें मौका मिला है कि हम तौबा करें, हमें मौका मिला है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आए। लेकिन हम ईमान नहीं लाते हैं। कितने ईस्टर मना चुके हैं, कितने क्रिसमस मना चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने तौबा नहीं की है। हमने उस यीशु को अपनी जिंदगी में आने की दावत नहीं की है। हम रोजा रखते हैं, लेकिन वैसा रोजा नहीं रखते जैसा खुदावंद यीशु नासरी चाहता है कि हम रोजा रखें। वो कैसा रोजा चाहता है? वो कैसा रोजा चाहता है? एक रोजा है जिसको खुदावंद यीशु नासरी ने रिकमेंड किया है। रिकमेंड समझते हैं? जिस पर उसने मोहर लगाई है, जिसकी उसने तस्दीक की है। वो कौन सा रोजा है? कौन बताएगा मुझे? कोई बता सकता है? अच्छा, मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12 बाब। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12 बाब 38 आयत से 41 आयत तक। ये वो रोजा है जो खुदावंद यीशु नासरी ने रेकमेंड किया कि ऐसा रोजा रखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के पास यूहन्ना के शागिर्द आए थे और उन्होंने कहा था कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, और यूहन्ना के जो शागिर्द हैं वो हफ्ता में 2 बार रोजा रखते हैं। और आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक कौन था? फरीसी था, और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी ने कैसी दुआ की? आए खुदा, मैं तेरा बड़ा शुक्र करता हूँ, मैं हफ्ता में 2 बार क्या रखता हूँ? रोजे रखता हूँ, सारे काम करता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने क्या किया? लिखा है कि उसने नजरें भी ना उठाई और छाती पीट पीट कर कहा, आए बाप मुझे माफ कर। ऐसा रोजा चाहिए।
खुदा रस्मी रोजे पसंद नहीं करता, बेशक 40 की बजाय 80 रखो, लेकिन खुदा ऐसे रोजे को चाहता है जो दिल से निकले। आज अगर आपने एक रोजा भी रखा है, तो वो 3 घंटे का है, तो वो 5 घंटे का है, तो वो 48 घंटे का है, तो वो 40 दिन का है, ऐसा रोजा हो जो खुदा को पसंदीदा और मकबूल। खुदा कहता है मुझे कैसा रोजा पसंद है। भाई जी पढ़े प्लीज 38 आयत से। इस पर बाज फकीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते अच्छा, हैं। क्या सवाल कर रहे हैं? ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। क्या वो अंधे थे? निशान तो वो दिखा रहा था, और क्या निशान वो उनको दिखाता? वो 4 दिन के मरे हुए लाजर को कहता है, आए लाजर निकला, और लाजर कब्र में से उसी तरह से लिपटा हुआ निकल आता है। और क्या निशान चाहते हैं? मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोड़ी जो एक कोरोना की तरह एक नापाक और मूजी मर्ज था, लाइलाज था, लोग कोड़ से शिफा पा रहे हैं। फिर कैसा निशान वो चाहते हैं कि खुदावंद को हमें निशान दिखा? इसलिए कि वो सिर्फ आजमाइश करना चाहते थे। उनको पता था कि ये कर सकता है, वो जानते थे कि ये करता है। इसकी पोशाक छूने से भी लोग शिफा पाते हैं। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि पोशाक तो दूर की बात है, मेरा यीशु नासरी जहां पर खड़ा होता था, उसके बदन को जो हवा टच करती थी और मरीज को छूती थी, वो भी शिफा पाता था, क्योंकि मेरे यीशु के नाम में शिफा है। और वो ये हो नहीं सकता कि वो मौजूद हो और शिफा लोग ना पाए। वो कसरत का मौका है, जिंदगी का मालिक है, लेकिन वो आजमाइश करते हैं। बाज दफा हम भी रोजे में ठहर के आजमाइश करने की कोशिश करते हैं। खुदा देने की कुदरत रखता है, वो मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। फिर मैं तो कहता हूँ रोजे की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। रोजा जब कोई रुकावट होती है ना, फिर हम रोजा रखते हैं कि खुदा तो मेरी दुआ सुन नहीं रहा। हमारी दुआ तो ऐसी होनी चाहिए कि हम मांगे और फौरन खुदा हमें दे दे, क्योंकि उसने लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाए, ढूंढो तो आओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला। इट्स मीन कि उसकी कुदरत में कमी नहीं है, कमी हमारे मांगने में। ईमान से मांग के देखें। मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत कुछ उसके नाम के वसीला से हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। सो ये आजमाइश कर रहे हैं। मसीह खुदावंद ने रोजा रिकमेंड किया उनकी दिली हालतों को देख कि तुम आए कम एतकाद हो, सब कुछ देखते हुए भी ईमान नहीं लाते हो। लेकिन एक कौम थी जो गैर कौम थी, और वो मुझ पर ईमान लाती थी और उन्होंने तौबा की थी। पढ़े जरा, क्या थी, कौन सी कौम थी? उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा और कोई निशान नहीं। अच्छा, यूना नबी का तज़किरा हो रहा है कि यूना नबी के निशान के सिवा उनको ना दिया जाएगा कोई और निशान आगे, क्योंकि जैसे यूना 3 रात और दिन के मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात और दिन जमीन के अंदर रहेगा। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, ये नैनवा के लोगों की बात हो रही है। किन लोगों की? नैनवा। बहुत तो नहीं हो रहे, हो भी रहे हो तो मैसेज मैं आपको नहीं देता। ठीक है, सुने, खुदा आपको बरकत देगा। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बोर ना करूं और रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ जो है बात करूं। सो यहाँ पर नैनवा के लोगों की बात हो रही है। किन लोगों की? नैनवा के लोग कौन थे? यहूदी नहीं थे, गैर कौम के लोग थे, बुत प्रस्त लोग थे, दूसरे मज़ाहिब के लोग थे। यहाँ पर खुदावंद यीशु नासरी उनके रोजे को रिकमेंड कर रहा है। जरा गौर से सुने, सोचे। अपनी कौम का तस्करा नहीं कर रहा, क्योंकि अपनी कौम तो सदा बागी रही है। उन्होंने कुलजम भी 2 हिस्से होया है। उन्होंने खुदा ने आसमान तो आसमानी खुराक भी मुहैया की है, लेकिन वो फिर भी नाशुक्री रहे ने। वो कहते हैं कि हाय हमें वो खीरे याद आते हैं और वो मछली और वो गंदने जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। आजादी नु भुल गए ने,
اور موزے نو بھول گئے نے تے نا شکری کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح غیر قوم دے روزے نو ریکمینڈ کر رہے نے تے آج اگر اسی روزے رکھنے ہیں اور ہم مسیح ہیں لیکن ہمارا کردار مسیحوں جیسا نہیں ہے، ہمارا روزہ خدا کے کلام جیسا نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ خدا آپ کو اس روزے کا اجر دے گا۔ خدا کبھی آپ کو اس روزے کا اجر نہیں دے گا۔ ہاں، غیر قوم کے لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں، رحم دلی کرتے ہیں، اپنا کھانا بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ان کی زندگی میں محبت ہے، تو خدا ان کو ضرور اجر دے گا، کیونکہ وہ سب کا خدا ہے اور وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ کبھی بے انصافی نہیں کرے گا۔ یہاں پر ریکمینڈ کیا ہے، سو ایس پلیکھے جنا رہے ہو کہ لیبل تے مسیح دا لگا ہے تے اسی بچ جاواں گے، امال ہون گے تے بچو گے، روزے خدا نو پسندیدہ ہون گے تے قبول ہون گے، باقی سارا دن متھا ٹیکدے رہنا او دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے میں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے توبہ کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھو۔ نینوا کے لوگوں کے پاس ایک پیغام گیا تھا، سن رہے ہیں؟ کیا پیغام گیا تھا؟ خداوند نے یونا سے کہا کہ جا اور جا کر نینوا شہر کے خلاف منادی کر۔ کیا کر؟ منادی کر۔ کس کے خلاف؟ نینوا کے لوگوں کے خلاف۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے آج یہاں پر میں آیا ہوں اور مجھے خدا کہے کہ یہاں پر جا کر میں منادی کروں کہ تسی سارے برباد ہو جاؤ تے جے تساں پھول چھول دیتے نا میرے کو کھولو